over here by my dear friend and co-host Amit Arora. Good morning, Amit. A very good morning to you, Sakshi. महिला विश्व कप 2022 का पहला सेमीफाइनल आज 1 घंटा 45 मिनट देरी से शुरू हुआ वर्षा के कारण, जिसके चलते 45 ओवर्स की का जो है इनिंग्स हो गई है और अपने 45 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 305 रन बनाए हैं 3 विकेट नुकसान पर। चलिए कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जय शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। गुड मॉर्निंग। Good morning. जी राजा रमन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning, Amit. Thank you very much. 305 for 3 in 45 overs. I think Australia showed what they are capable of, and they have been showing that throughout the tournament. And what a batting from the openers! I mean, and that's how the game has been played. And बोलते हैं कि जब आपके openers आपको एक अच्छा start देते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 300 के पार होता है। जी, और जब हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो अपने सारे श्रोताओं को भी बता दें कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनी आज वो थी 216 रनों की। दैट इज अ ह्यूज स्कोर इन इटसेल्फ, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे रेचल हाइंस की, जिन्होंने 85 रन बनाए 100 बॉलों में, और वहीं पर हमने देखा कि हेली ने बनाए 129 रन्स इन 100 बॉल्स फेस्ड। राजा, overall this has been possibly the best performance by the Australians so far in the tournament. Yeah, absolutely. They didn't look a gift horse in the mouth. वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीत के निमंत्रण दिया कि आप आओ बल्लेबाजी करो और हम पे दबाव बनाओ, एंड दे मेड द मोस्ट ऑफ इट. आई थिंक वेस्ट इंडीज विल आल्सो डू सम वेरी पुअर कैचिंग, वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग टुडे, मानना पड़ेगा. एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ये क्रिकेट खेल के जीत नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल काम होगा जीतना. Two of their batters will have to really come out and hammer the bowling. Not very easy task. They will regret asking Australia to bat first. So you are disappointed that West Indies captain Stefanie Taylor chose to bowl first? No, I'm not disappointed. We got to see some great batting. As a neutral fan, you get to see some wonderful batting. The openers were on top of their game. Yes. They took their time, settled down, and then they went after the bowling. So West Indies didn't have the depth in bowling. So they didn't have the confidence to put a score on board and put Australia under pressure. They probably think that they can chase down any score. Not going to be easy. Makes for a good viewing, good listening. You would want a bit more from the West Indies. A little bit of spunk, a little bit of fight. अगर वो दिखता है तो बहुत अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन नामुमकिन लग रहा है. Right. Jaya, this brings to my mind the very first thing that we were talking in the first show आज, which was कि अगर हम देखें, क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज कहीं इंटिमिडेट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन से? एंड डू यू थिंक दैट द वेस्ट इंडियंस टुडे looked intimidated from the word go? Definitely, the way Australian batters performed, they were just toying with the bowling of West Indies. And when you are playing a semi-final of a World Cup, you can't afford to have this much of this kind of bowling and so many lapses in the field. So West Indies was looking very ordinary, and at the same time, Australia was carrying on their form. What they have been brought to the whole World Cup. जी, तो बिल्कुल सवाल ये है कि कौन बनेगा विजेता के बाद सवालिया निशान लगाना है कि एक्सक्लेमेशन. देखना दिलचस्प रहेगा विंडीज कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. लेकिन आप भी यहाँ पर सवाल कर सकते हैं जी राजा रमन, जय शर्मा से. नंबर्स हैं 011 दिल्ली का STD कोड 26497023 26497024. Raja, when the toss happened today, and of course we had the national anthem before that, help our listeners understand that West Indies is a collection of nations. Then how can we understand the national anthem that is played better? It's not truly a national anthem because West Indies is a collection of countries. Yes. It is a region. The Caribbean region comes together and plays as one. Cricket binds them together, Amit. And I think it is really beautiful that they got one song written especially as the anthem for them. Yes. And it's beautiful. I could see the West Indian players sing the anthem. Some of the men don't. But it was lovely to watch them sing. Rally round the West Indies. So it's a war cry. It's asking them to come together. Unfortunately, today, from the moment they won the toss and decided to bowl, things have not gone their way. They would be hoping for a change of fortune at the break, and the pitch is not going to change. I'm sure they will want to give the chase a good hunt and see whether they can get to that 306. It's going to be a magical victory if they get there. Yes. I only hope they don't suffer a 150-run defeat and make it disappointing for themselves and for their fans. करेक्ट, ऑफ कोर्स. और इस समय हमारे साथ दो कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं. चलिए सबसे पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
वाओ, दैट्स अ वेरी ब्राइट वॉइस, चर्पी वॉइस। आज सुबह सुबह जान सकते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? शिवशंकर सिंह बात कर रहा हूँ। सुबह भी कॉल किया था, बस कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही थी मेरी। जी शिव शंकर जी, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम क्या, अच्छा मैम मेरा एक सवाल है जी। जो बहुत, पुरुष जो स्पिनर बॉलर होते हैं वो गुगली करते हैं, लेग स्पिन करते हैं और पता नहीं कितने प्रकार की, क्या महिलाओं के पास गुगली अवेलेबल नहीं आता? क्या करना है उनको? वी विल और, टेक दैट और दूसरा और क्वेश्चन। दूसरा और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है जी कि जब मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतना बढ़िया खेला, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको बढ़िया खेला, उसके लिए हम उसका तारीफ धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। जब इतना सारा कैच छोड़ेंगे तो कैसे जाकर के मैच जीतेंगे हम वेस्ट इंडीज वाले? शुक्रिया आपके सवाल के लिए। एक और कॉलर है। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहे हैं? मैं सर बलवंत सिंह चौहान, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल से कह रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप चौहान जी? सर सवाल तो कुछ नहीं है। अब आके आज ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और मतलब बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और बाकी ऑल इंडिया रेडियो पर जो आपकी कमेंट आ रही है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता सर आपका। जी शुक्रिया। जय, जो पहले कॉलर थे कि स्पिन में वेरिएशंस, नहीं, डेफिनेटली अमित, स्पिन में वेरिएशंस होती हैं। आप अगर किसी भी बड़े गेंदबाज को देखेंगे, डेफिनेटली उनके पास वो स्किल होता है, क्योंकि आपको सस्टेन करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वेरिएशंस लानी पड़ती हैं। नॉट एवरी बॉलर हैज़ दैट, but yes, some of the good bowlers, they have those variations. right, of course. So I don't think the demarcation between the males and the females would stand much over here ki, because at the end of the day dono hi genders are playing for international tournaments over here, so they have to be up to that skill. Second question जो राजा पूछा गया था वो ये कहा गया था कि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह की आज फील्डिंग करी है and so many dropped catches, somewhere that definitely has contributed towards Australia taking the benefit more in their stride. Undoubtedly, Sakshi, when you drop catches and when you have such fielding lapses, even ground fielding was pretty ordinary. Any team will make the most of it, not the least Australia. बहुत बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलियन टीम, और उनको रोकने के लिए you have to bring your A game. आज तो मुझे लगा C game दिखा वेस्ट इंडीज का. It was not even their B game. B minus भी नहीं था, C game हो गया unfortunately. They started well. They had a good first 10 overs where they were kind of keeping the run flow in check. उसके बाद तो they cut loose. The Australians cut loose. Now beside 305 runs, there's something called pressure that will Correct. add more challenges to the West Indian batters. देखना होगा कि कैसे उसको अब स्वीकार करते हैं and then face it and how to overcome it. I think it will be an object lesson in international cricket in facing pressure. If the West Indies manage something, it will be a miracle. Absolutely. Well, this is the highest stage when it comes to world cricket, World Cup, and therefore pressure needs to be handled. एक और कॉलर है अपने सवाल के साथ. हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम साहिल है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी वो आज खराब थी क्या, मतलब। और मेरा दूसरा सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 2 ओवर्स में मैम कम रन बनाए क्या? जी, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में आपको प्रभावित किया? देखिए, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में जो उनको जो की बॉलर्स थे, लाइक उनके स्पिनर्स, अनीसा मोहम्मद उनकी एक की रोल प्ले करती हैं, आज वो बिल्कुल नहीं चली। 2 ही ओवर डाले और 20 रन खाए हैं। तो आई थिंक जब आपके की बॉलर्स, जो आपके कुछ पेनिट्रेशन जो बोलते हैं बॉलिंग में, वो कहीं पे भी नजर नहीं आई। जी, ऑल्सो वन थिंग मोर जो उन्होंने पूछा राजा कि लास्ट के 2 ओवर्स में क्या ऑस्ट्रेलियंस ने कम रन बनाए। आई थिंक द ओवरऑल टारगेट इन इटसेल्फ, मतलब 300 रन तक तो वो टच कर ही गए थे, तो अगर लास्ट के 2 ओवर्स में कंपैरेटिवली उनका रन रेट गिरा भी हो तब भी ओवरऑल टू द पिक्चर इट वुडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। No, at 200 for no loss, it looked like 325 was a possibility. The listener's question is very valid. बहुत Last सही के 2 सवाल है, overs में, क्योंकि 325 रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और 305 हो गए, तो 20 रन कम ही पड़े हैं. If there were 3 boundaries not hit in the penultimate over, they wouldn't have got to 300. Or they just might have scraped to 300. So it's a fair question, but this is a good enough score for Australia. 45 overs में 300 रन, it's a massive score. पर जो आप बोल रही थी जया, अनीसा मोहम्मद ने 2 ओवर में 20 रन दिए, क्या कप्तान ने उन्हें अंडर बॉल किया? क्योंकि कप्तान ने खुद अपने आप को 5 ओवर दिए, 48 रन, वो भी लगभग 10 रन दे रही थी 1 ओवर में। यही हम जो बात कर रहे थे सुबह, राजा ने भी बोला कि कुछ जब इंडिया की बात कर रहे थे कि कुछ
कप्तानी के डिसीजंस, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई डिसीजन आपके ऊपर भारी पड़ जाता है, तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और क्योंकि आप लेफ्ट हैंडर हैं, एक धारणा क्रिकेट में रहती है भाई ऑफ स्पिनर रखो टीम में Right. लेफ्ट हैंडर्स के लिए। Right. अब हमने देखा चाहे भारतीय टीम थी, 4 ऑफ स्पिनर थे हमारे पास, स्नेह राणा थी, दीप्ति थी, हरमन ने भी ऑफ स्पिन किया आखिरी मुकाबले में। क्या लेग स्पिनर का रोल कम हो गया है बदलते क्रिकेट के साथ? नो, आई डोंट थिंक सो। लेग स्पिनर का रोल डेफिनेटली है। लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म, ये जैसे हम बोलते हैं कि बैटर्स जो होते हैं, लेफ्टी बैटर्स बड़े रेयर फाइंड होते हैं, वैसे ही लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का अपना एक एडवांटेज होता है। और ये चीज़ देखने को मिली कि वेस्ट इंडीज़ के पास वो इतनी वैरायटी थी नहीं। हाँ, वो वैरायटी नहीं थी। अगर वैरायटी की हम बात करें तो एक नज़र अगर डालें कि किस तरह से आज राजा वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग करी, खासतौर से एक नाम जो आता है वो है करिश्मा रामहरक का, जिन्होंने 9 ओवर में 65 रन दिए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.2। वहीं अगर हम डोटन की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर्स फेंके लेकिन उसमें 31 रन दिए, कम ओवर्स दिए लेकिन इकोनॉमी रेट वहाँ पर ज़्यादा था। तो बॉलर्स आज हर तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथों पिटे हैं। Do you think it was bad bowling, or do you think at the end of the day the decision which turned out in favor of Australians to bat first turned out to be a big advantage for the Australians? First and foremost, Deandra Doughton is not your regular bowler. Correct. She was brought in as a change. Which is at तो 3 3 ओवर overs. में अगर हाँ, exactly. 30 रन दिए हैं, it is to compensate for somebody else not bowling her quota of overs. Now they started off well. There was some extra bounce for the bowlers. The spinners also started pretty well, and but the Australians adapted very quickly. तो तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की, जब तक कि उनको समझ नहीं आया कि पिच में कितना बाउंस है, क्या कमाल कर रहा है पिच। When they understood it, they were masters and they played some brilliant cricket today. So it's not so much the West Indian bowling as the Australian batting. It's a combination, obviously. You would expect the West Indians to do a lot better, but they had very limited resources. सुबह में बात हो रही थी कि उनके पास गेंदबाज हैं who can stop other teams, but not this Australian side. और जब मौका मिलता है ना, साक्षी हाथ में आए हुए कैचेस छोड़ रहे थे। You can't do that and hook and then blame the bowler saying that आपने 9 ओवर में 65 रन दिए। उनके बॉलिंग में कैचेस छूटे हैं, तो she could easily have been 3 for 45 in her 9 or 10 overs. I would like to add one thing here. As a cricketer, we always listen to this that your fielders make the bowlers look good. Yes. So that was the scenario that was the lapse that West Indies made. पर जय, जैसे हीली मैथ्यूज के पास एक कैच आया तो दिखने में कभी-कभी लगता है एकदम हाथ में आया, फिर छलक कैसे जाता है बाहर? कभी-कभी वो एक टेक्निकल रीजन हो जाता है, कभी-कभी आपके हाथ स्टिफ हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट हाथ रखने चाहिए। कैच लेके नीचे चले जाए? हाँ, वो एक जो प्रोसेस होता है उसका, उसमें कभी-कभी होता है कि आपने बॉल को देखा नहीं लास्ट तक, और माइट भी आपके हाथ उतने सॉफ्ट नहीं थे, तो उससे वो बॉल पॉप आउट कर जाती है। But Raja, you were saying that no matter how good a fielder you are, difficult to keep your eyes on the ball till the last second. No, it is tough. When you watch very closely, you will see fielders, उनकी नजर हमेशा उधर से बॉल आ रही होती है, ऊपर की होती है जब हाथ में बॉल होता है। Where she missed हीली मैथ्यूज ने कैच, क्योंकि अगर आप स्टिफ रखोगे हाथ को तो बाउंस हो जाएगा, तो यू हैव टू गिव। नॉर्मली ये होता है, आई एम नॉट अ क्रिकेट कोच, बट वॉट एवर लिटिल क्रिकेट आई प्लेड, माई कोचेस टॉट मी दैट जब आप कैच लेते हो तो थोड़ा सा गिव, हाथ को सॉफ्ट करके लेना पड़ता है, एंड देन क्लोज योर आर्म्स इन। She had it very firm, so it kind of bounced off. Bounced off, right? Of course. और इस समय साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैम मोहसिन अली बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश बालाघाट से। मोहसिन अली, आपका स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल जीतेगी मुझे लगता है। ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीतेगी, वेरी गुड, आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। जय मैम, हेलो। जी मोहसिन जी, हाँ जी मैम हमारे यहाँ पर मैम कमेंट्री नहीं पहुँच पा रही मैम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक कमेंट्री पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग इन, थैंक यू सो मच। जया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डू यू थिंक समवेयर टुडे वेस्ट इंडीज आफ्टर हैविंग वन द टॉस miscalculated or misread the conditions to have chosen to bowl first touch? I think what the situation was around, that for them that was the best bet because they wanted to exploit the wicket and the overcast conditions. But I guess the credit goes to the Australian batters. They took their time, adapted well, and then changed their gears. तो अब जब एक इनिंग हो गई है 45 ओवर की राजा, धूप भी निकल आई है, क्या अभी भी सुबह जो बारिश हुई है उसका असर होगा? क्या वेट आउटफील्ड रहती है दिन भर, या अब बिल्कुल सामान्य है?
अमित, बारिश की ही बात करता हूं मैं एक सेकंड के लिए। जब टॉस हुआ था, वेस्ट इंडीज के कप्तान ने कहा कि बारिश का माहौल है, इसीलिए हम गेंदबाजी कर रहे हैं, बिकॉज शी वांटेड टू प्ले द डकवर्थ लुइस। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी टीम मैनेजर अगर वेदर एप्स को चेक करते हैं तो उन्हें पता था कि धूप निकल के आने वाला है, इट गोइंग टू बी अ ब्राइट डे, और न्यूज़ीलैंड के सो दे forecast मेड ठीक दिस होते हैं। मिसकैलकुलेशन। मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल होमवर्क चाहिए एक टीम को वो नहीं मिला उनको। हाँ, yes, which is why what you were talking about कि बाद में धूप निकल के आएगी पूरी, so somewhere that decision This did I not was play out. telling you Yes. from when the time the Correct. toss was deferred, I was telling you that there's going to be sunshine through the day, except for the first hour when it is going to rain. अगर हम दिल्ली में बैठ के ये जान सकते हैं, तो ग्राउंड में होते हुए they should have known a little better than that. राइट, एक और कॉलर है इस समय अपने सवाल के साथ। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संदीप गिरी बात कर रहा हूँ सर, जी, कहाँ से? महाराष्ट्र नांदेड़। महाराष्ट्र से। जी, पूछिए। जो ऑस्ट्रेलिया की बैटर ने जो इतना टारगेट दिया है हमारा वेस्ट इंडीज को, जी, क्या वो वेस्ट इंडीज अपने प्लान बैटर के साथ उतरेगी या ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करके दिखाएगी बॉलर जो एक उसको कम से कम रन में कैसे विकेट गिराए उसके, या ऐसे कुछ प्लान के साथ उतरेगी बोल जी, रहा हूँ। शुक्रिया। जया, हमने देखा है कि जो ओपनिंग मैच था उसमें हीली मैथ्यूज ने शतक बनाया था और वेस्ट इंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को हरा दिया। डिएंड्रा डॉटिन ने भी काफी आक्रामक खेल खेला है। क्या ये दोनों अच्छी साझेदारी कर सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ने की? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और वही दरकार है यहाँ पे, क्योंकि हम जब भी क्रिकेट को असेस करते हैं तो यही बोला जाता है कि जो दूसरी टीम है वो भी अगर उसी तरीके से परफॉर्म करे तो वो भी जीत सकती है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला, अगर उनको ओपनिंग साझेदारी मिलती है तो डेफिनेटली दे कैन टेक द गेम डीप। दे नीड टू टेक द गेम डीप, अदरवाइज अगर रिजल्ट होगा तो माइट भी ये भी हो सकता है कि वो बड़े मार्जिन से हार जाएं अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं और जाए। अब ये भी होगा कि भाई देखो तुम दोनों कैच छोड़ी है, अब थोड़ा बैटिंग और अच्छी करो। बैटिंग और अच्छी करो की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजा, आई वुड वांट टू नो इन दैट केस कि वेस्ट इंडीज जब अभी खेलने उतरेंगे, वेस्ट इंडियन बैटर्स खासतौर से, डू यू थिंक दे हैव द डेप्थ एंड द कंसिस्टेंसी टू लिव अप टू दिस No, टारगेट they दैट don't. दे हैव? I'll take you back to the match against India. They were running away with the game, 100 for no loss in 10 overs. And then after that, they just collapsed and let India win by 150 runs. So they don't have the depth. 1, 2, 3, and 4 is where you will expect some runs. The statistician has left something very nice for us to look at. You've got Matthews scoring 226 runs, including 1 century. दूसरी half century बनी नहीं उनसे. The captain has got a couple of half centuries for her, and then there are 2 other half centuries. तो ना depth है ना consistency है. तो I think that they will have to play really out of their skins. कुछ करिश्मा करना होगा. There is one player called करिश्मा, Yes. जो leg spin कर रही थी, तो उनको चाहिए करिश्मा। जी, करिश्मा राम हराक उनका नाम है। और स्टैटिस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो शुक्रिया मोहम्मद इशाउद्दीन साहब का भी। एक और श्रोता है अपने सवाल के साथ। हेलो, हेलो, मैं सर बिहार नरपतगंज से अमित कुमार बोल रहा हूँ सर। जी, सर मेरा ये सवाल है मैम, जैसे बड़े मैच में सर, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत डोमिनेट करके खेलती है, वोमेन्स हो या मेंस दोनों में सर। हाँ जी, बड़े मैच जैसे वर्ल्ड कप के मैच हो तो बड़े डोमिनेट करके तो वही मेरा इंडिया सर कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। उस दिन वो दीप्ति का नो बॉल हो गया, इससे पहले भी ट्रायंगुलर सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो झूलन गोस्वामी का नो बॉल हो गया था सर। कहाँ हम लोग सर लैग करते हैं और कहाँ हम लोग को क्या सुधार सर करने चाहिए? बहुत बुरा लगता है सर, इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेल रही है जी, सर। आप of ज्यादा course. बुरा ना सोचें, खेल भावना में होता है। पर शुक्रिया आपके सवाल के और विचारों के लिए। जी, Thank और you. अमित हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो, शायद कनेक्शन कट गया है। भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए सेमीफाइनल्स तक, उस बात की निराशा आई थिंक हर क्रिकेट फैन को होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जया, आप क्रिकेटर रह चुकी खुद भी, कि हर खिलाड़ी की यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन एज अ टीम हम करें और सेमीज क्या फाइनल्स तक पहुंचे और फाइनल्स को जीते। सो समटाइम्स यू विन सम, वी लूज सम। Yes, it's how the game goes. I mean, it's simple enough that the team, the player who handles the pressure well in that situation, they will win. करेक्ट, यस। आपने वेस्ट इंडीज में कहा था जया कि वैरायटी ज्यादा नहीं थी
बॉलिंग में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपके पास डार्सी ब्राउन है, पेस के साथ मीगन शूट है, फिर स्पिन में देखें तो एलेना किंग है, और जॉनसन है, और फिर गार्डनर ऑलराउंडर। यहाँ पर अच्छी वैरायटी है। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे आप पेस भी देखेंगे, आप स्पिन भी देखेंगे, आप टर्न भी देखेंगे। तो आई थिंक इनके पास जो एक बॉलिंग में हम जो पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो पेनिट्रेशन नजर आता है इनकी बॉलिंग में। और इनके पास जो पेसर्स हैं, दे आर क्वाइट गुड, स्पिनर्स भी दे आर गुड। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जब बॉल टेंडम में डालते हैं दोनों एंड से, तो वहां पे रन्स भी रुकते हैं और वहां पे विकेट्स भी निकलती हैं। करेक्ट। सो राजा, अभी जब वेस्ट इंडियंस खेलने के लिए उतरेंगे, चेजिंग अ टारगेट ऑफ 305, इनफैक्ट 306 टू विन, व्हाट डू यू थिंक would be the one apt strategy that they need to keep in mind when they go and play? To score that 1 run extra and make 306. 306, yes. But आसान नहीं होगा. To play every ball on its merit, but to try and score quickly rather than put pressure on themselves, not lose early wickets. I think that will be the key. Not losing wickets and scoring at a fast clip. Both have to work together. तो आखिरी सवाल, कौन बनेगा विजेता का क्वेश्चन मार्क लगाएं, मिड इनिंग्स या एक्सक्लेमेशन? आई थिंक जवाब तो है, बट Very quickly. Very quickly. ऑस्ट्रेलिया। कहीं डाउट है क्या? एक्सक्लेमेशन ही हाँ, रखें, फिर answer क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। नहीं, फुल स्टॉप है ये. आज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, वहां पे अगर फुल स्टॉप हो ही गया है अमित, तो Absolutely. आई थिंक हमारे सेशन को भी यहाँ पर हम एक पॉज देंगे, फुल स्टॉप तो नहीं। थैंक यू राजा, थैंक यू जया, थैंक Thank यू you. अमित। थैंक यू।